How's it feeling like? If that's not working, you can take this one. Hello. I think it's a great feeling, like how these kinkers are coming on board for the first time, having their reality shows flooding. I think we have the same feeling. They are, they are right now at the stage where I was a few years back, and I feel, everybody has to grow in life, and what better than a show called Kink, and what better than a concept of reality show which is related to relationship and not dating. So I think I've done a fair job. Thanks to Vibhuji for appointing me, the entire team of Atrangi. Thank you, Nivi. Thank you, everyone. And of course, how can I forget the Keylight Productions? We've had a wonderful time. What a journey it has been. And last but not least, my own team, which has been there with me. So I think it's a complete collaborative effort. It's not just me. And I'm glad that I could handle a show like this and be there and speak. That's it. Thank you. Awesome, awesome. Now, before I come to you, I'd ask you one more question, that you've been part of a lot of reality shows. Not only been part, but won them. Thank you. How do you think this one is different from the others? I think for every show, I used to tell these kinkers also in the show कि show वही रह जाता है, contestants बदलते रहते हैं, और contestants है जो show को बनाते हैं, host नहीं होता जो show को बनाता है. Host खाली एक sailor होता है ship का, who's leading the show, giving the direction. But I think every show is different just because of so many people. They come and participate together with so many different personalities, and the one who sticks to their personality, stands for them, and जिद्दी जो हो जाता है ना वही जीतता है. So I think this show is also very different from all the other shows, and we had a lot of fun. You all saw that. It's quite different from what I have done actually. And I'm sure watching this, we will all have a lot of fun. But now it's time to ask questions to Mr. Vibhu Agarwal, the CEO, जिनकी वजह से ये सब possible हुआ है. So the writers block, Libas, Atrangi has hosted a lot of shows. How do you think Kink is different from them, and how excited are you for it? ये जो शो है, ये बेसिकली जो आपने नाम लिए लिबास और राइटर्स ब्लॉक, उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये नॉन फिक्शन और फिक्शन शोज से अलग है. और इसको बनाने का मेन रीज़न ये है कि कुछ अलग हट के एक चैनल, क्योंकि हमारा चैनल नया है और हमें कुछ अलग कुछ हट के करना है, कुछ अलग तरीके का देना है. तो नॉन फिक्शन शोज़ आज की तारीख में यूथ की डिमांड भी है और लोग देखना पसंद करते हैं. तो इसलिए ये थोड़ा हट के हमने प्लान किया, और इसकी प्लानिंग पिछले 1 साल से चल रही थी. मतलब हम गिरे उठे गिरे, और फिर अचानक से कीलाइट वाले हमारे पास आते हैं, और राजेश्वर जी और स्नेहल जी, और फिर ये साथ में एक बात बनती है, और लगता है कि इसको हम प्लान करते हैं, और एक अच्छा एक केमिस्ट्री बैठी हमारी, और ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बना, जिसमें हमारे यहाँ से जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट हैं निवेता जी, उनका इसमें बहुत बड़ा मेहनत, सहयोग. जब फ़ोन करो दोपहर में तो पता लगता था मैं एडिट पे बैठी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं शो पे हूँ. तो पूरी टीम जो हमारी ऑफ कोर्स कंटेस्टेंट्स, दिव्या जी और ओवरऑल सब ने काफ़ी इसमें वो किया, बट एज ए चैनल पूरी टीम का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा. हम लोग तो पीछे बैठे होते हैं, हम लोग तो सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना, वायलिन बजता है तो हम लोग सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं. सर, जितने लोग स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, आई एम श्योर उतने ही लोग बिहाइंड द सीन भी काम कर रहे हैं, और उनमें से एक आप हैं. आपने हट के बात की, आपने थोड़ी बात की कि कैसे अलग है ये शो, और कितना फिट करता है नाम को भी, क्योंकि चैनल का नाम है अतरंगी. तो अतरंगी चीज़ें देखने को मिलेंगी. लेकिन आप बताइए कि OTT पे व्यूइंग एक्सपीरियंस किस तरह से चेंज हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, OTT में क्या है ना कि अभी लोगों का क्या है कि एवरेज टाइम स्पेंड बहुत मैटर करता है, कि आप 5, 10, 15 मिनट के अंदर आप फटाफट चीज़ों को दिखा सकें और पब्लिक उसको पकड़ सके. अगर आपने उस 5, 10, 15 मिनट में नहीं पब्लिक को पकड़ा, इतना कंटेंट है लोगों को दिखाने के लिए और देखने के लिए कि अभी लोगों के पास चॉइस नहीं बची है. तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है, और कंटेंट के अंदर बहुत जल्दी हुक होना चाहिए कंटेंट, नहीं तो वो पब्लिक आउट हो जाएगी.
तो इसलिए डिफरेंट चाहिए, और यही प्लानिंग और यही जद्दोजहद में हर इंसान लगा हुआ है, हर चैनल और हर OTT लगा हुआ है इसी उसमें। जी बिल्कुल। अब मैं दरख्वास्त करूंगी कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आपको जो भी सवाल पूछने हैं विभू जी से या दिव्या से, प्लीज़ यू कैन गो हैड। Shoot. Anybody who wants to ask a question? Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. Yeah, hi. I think मेरा सवाल सबसे पहले तो Yeah, go ahead. आई थिंक सबसे पहले तो दोनों अग्रवालों को बधाई। इसलिए मेरे को शो में कास्ट किया गया एज अ होस्ट, क्योंकि हमारा सरनेम सेम है। अग्रवालवाद है, अग्रवालवाद। सही कहा आपने, अग्रवालवाद है। सो ऑब्वियसली शो का हमने देखा क्या है शो, और जो इसकी टैगलाइन है किस इश्क एंड कनेक्शंस। तो जहाँ किस है इश्क है, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है कि वहाँ डेटिंग नहीं है, रिलेशनशिप है। तो ये थोड़ा इस पे थोड़ा आप कुछ ये समझाएंगे? अच्छा, तो ये कंफ्यूजन जो पूरी इंडिया को है कि हम डेट कर रहे हैं या हम रिलेशनशिप में हैं, कपल्स के आपस के बीच में, आप वही चीज़ पूछ रहे हैं। एक बंदे को लगता है कि वो डेट कर रहा होता है, दूसरे बंदे को लगता है कि वो रिलेशनशिप में है। सो दिस शो विल गिव यू अ क्लैरिटी। देयर आर पीपल इन द शो जो कई सालों से रिलेशनशिप में है, एंड वो ऐसी कभी कोई सेटिंग में नहीं आए हैं जहाँ पे उनके रिलेशनशिप को टेस्ट किया गया है। दे बीन जस्ट सीक्रेटली हैविंग द रिलेशनशिप, किसी को पता नहीं है। पर रिलेशनशिप का तब ज़्यादा टेस्ट प्रूव होता है सही जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होकर उसको पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देन यू सी हाउ मच योर रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर, हाउ मच यू वांट टू गो अहेड, और जो साथ में तुम्हारे जो पार्टनर है वो कितना हिम्मत वाला है या हिम्मत वाली है जो तुम्हारे साथ ये जर्नी को निभाएगा। एंड डेटिंग इज़ लाइक रिलेशनशिप की शुरुआत डेटिंग से होती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे कपल्स हैं जो डेट कर रहे थे एंड इस शो के बाद शायद एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में चले गए हैं, या शायद ब्रेकअप भी हो गया होगा। आई एम मीटिंग देम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं पूछूंगी इनसे। ओके, अनदर क्वेश्चन, लुकिंग एट द कंटेस्टेंट्स, यू नो, जो उनका नेचर है, इडियोसिंक्रेसी है, क्या ये कोई देखने में ऐसा लगता है कि ये शो में आने के बाद बागीपन इनमें आया या पहले से ही है? नहीं, ये पहले दिन से ही ऐसे क्रेजी किंकर्स थे। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस शो, बिकॉज कई बार अभी आप रियलिटी शोज़ में देखते हो, पीपल आर क्वाइट फिल्टर्ड। वो बहुत सोच समझ के बातें करते हैं, वो बहुत सोच समझ के झगड़ा करते हैं या अपने दिल की बात रखते हैं, लोगों को प्लीज़ करने के लिए बोलते हैं कि नहीं, अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा, मैं वैसे बोलूँगा तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक दिस शो, ये सारे कंटेस्टेंट्स ने प्रूव किया है कि वो जैसे बाहर है ना, दे आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट देयर बिहेवियर, वैसे ही वो शो पे हैं। एंड आई होप दैट दे मेंटेन देयर ऑथेंटिसिटी। अब वो लोगों को पसंद आती है या लोगों को ख़राब लगती है, इट्स ऑन द पीपल। एक सवाल विभू जी से है। ऑब्वियसली लुकिंग एट द टीज़र, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे टाइप के शोज़ इतने नहीं देख पाता हूँ, बट शायद थोड़ा बहुत कुछ जो एग्जिस्टिंग शोज़ रहे हैं दूसरे चैनल्स के ऊपर, शायद स्प्लिट्स विला, या तो ये कहीं कहीं उनसे थोड़ा कुछ सिमिलैरिटी है या ये वाकई अतरंगी है? नहीं, यहाँ पे सनी लियोनी तो नहीं दिख रही थी मुझे। नहीं, ये वाकई अतरंगी है, डिफरेंट है। मैं तो हमेशा, आप लोग को पता है मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मैं हमेशा कुछ अलग ही करता हूं। विभू जी, एज यू टू योर राइट, एज यू राइटली सेड कि शुरू के 5 मिनट जो भी होता है किसी कंटेंट को पकड़ने के लिए बहुत काफ़ी हो जाता है। सो जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, डिड यू सेड येस फॉर द फर्स्ट टाइम, और वेयर देयर एनी सेकंड थॉट्स? एंड देन दिव्या ऑल्सो, जब आपने हाँ कहा तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें थी कि हाँ, आई विल बी इन अ पोजिशन टू यू नो इन चीज़ों को सामने लेकर आए, या ऐप के ज़रिए, टीवी के ज़रिए में, तो लोगों को ये कनेक्ट करेगा किसी तरीके से, टू बोथ ऑफ यू? सो आई थिंक जब मेरे पास पहली बार किंक आया था तब स्नेहल वॉज देयर विद मी, एंड स्नेहल ने मुझे समझाया था कि उनके लिए जो एक होस्ट का विजन है वो कैसा होना चाहिए। वो होस्ट लेकिन क्या ये कांस्टेंट प्लान था कि ओटीटी पे ही लाना है, ताकि मतलब जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, क्योंकि अभी जो ओटीटी का दौर भी चल रहा है और लोग फॉलो भी। ऑफ कोर्स ओटीटी अभी क्या हो गया, घर घर इंटरनेट हो गया है, और इंटरनेट होने की वजह से लोग जो है ना मोबाइल पे आज की तारीख में
कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, इवन मैं भी अगर हूँ, कोई भी जना हो, ये कहा नहीं जा सकता है मोबाइल पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो OTT एक माध्यम हो चुका है घर घर पहुँचाना और लोगों को दिखाना। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा आपको पता है कि हमारा सैटेलाइट चैनल भी है, TV चैनल भी है, तो हम उसके अंदर ऑफ कोर्स एक हम लोग हमने वहाँ पर भी उसको दिया है जो लोग डेटा कंज्यूम नहीं करना चाहते, जैसे Tier 3 के अंदर, Tier 4 के अंदर लोगों के पास एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर नहीं जाना चाहते, पूरे दिन उनको व्हाट्सएप देखना है या फेसबुक देखना है, तो वहाँ के लिए हमने TV को किया। तो रात में 10:30 बजे ये प्रोग्राम आएगा। लेकिन आज की तारीख में जैसे 80-20 का रेशियो है, तो 80% OTT है, डिजिटल है। तो डिजिटल सबसे बड़ा माध्यम होता है। और मेन देखिए, एज ए चैनल प्लानिंग तो यही होती है कि चैनल पे रिलीज़ किया जाए, तो इसके लिए 360 डिग्री देखना है, तो आप TV पे भी दिखा रहे हैं और OTT भी दिखा रहे हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बिकॉज वी आर हेयर एज ए चैनल, तो चैनल में जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना बेटर होगा। Anything you would like to add? Excuse me? So I want to introduce, he is Mr. Avinash Dugar. He is the CEO of Ullu Digital. He has just joined our organization on 24th August. So he is here. So मैं आप लोग को इसमें इंट्रोड्यूस करना भी चाह रहा था, तो मैंने कहा आज इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा। So if you want to ask something, you can. Hello everybody. Yeah. क्या USP होगी सर, अगर उस बारे में कुछ बताएं? About this King, I'm feeling so elated and blessed also to be a part of this magnanimous event, King. After having joined this organization recently and being a witness to this King, in itself speaks the kind of euphoria I see among the young contestants here and the kind of effort Mr. Vivu and Nivedita has put. It is all evident in the promo that we saw here, and I wish them all the best. I wish myself all the best and the entire organization for the next season as well. Thank you. ये भी सरप्राइज था, हमने ये पहले देखा नहीं था। सो अभी वी आर ऑल मिक्स्ड फीलिंग में, वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी पेप्ड अप एक्चुअली। अभी ये देखने के बाद तो और ज़्यादा हमें लगा था हम बहुत ज़्यादा अच्छा देकर आए हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना अच्छा देकर आए हैं कि हमें देख के ऐसा हो जाएगा कि वाह यार। क्योंकि ये जो अभी सिंगल में दिखाया वो अभी तक हमें नहीं दिखाया था पहले, तो अभी जो दिखाया इतना सरप्राइजिंग था हमारे लिए। इसका आउटकम जो हमारे पेशेंस और हमारे इतने टाइम का सब्र का आउटकम बहुत अच्छा मिला। मैं खुद को देख के हो गया कि यार ये हॉट बंदा कौन है, बाद में चला मैं ही हूँ। पहले से ही वीडियो बना रहा था। सबके असली रंग दिख रहे हैं। अभी तो पहला एपिसोड आया है, अभी आगे देखो होता है क्या? होता है क्या। एक्चुअली होने वाला तो वही है जो हमने किया है। एक्सपीरियंस। हाय एवरीवन, आई एम मुक्ता के, आई एम अ रैपर एंड अ मॉडल, और ये मेरा सेकंड रियलिटी शो है, बट फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इंडिया में। आई थिंक पहली बार ऐसा शो हो रहा है विच इज़ hot AF and everybody knows I am hot AF, so obviously बहुत मज़ा आया ये शो करके, and big thanks to production, Keylight Productions and all our team members. उन्होंने they really pulled out it very well, और experience जो था, actually I am dating my boyfriend Pratik Jain, who is unfortunately not here today because he is shooting. तो हम लोग का रिलेशन बहुत नया है, and suddenly we had to make it public on a reality show. तो बहुत मज़ा आया, बहुत नर्वसनेस था, बहुत एक्साइटमेंट था, बट आई थिंक द एक्सपीरियंस वाज आउट ऑफ सो गाइज, मेरा नाम दीपाली चौहान है, और मेरा किंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है, बिकॉज ये मेरा पहला शो है, और इतना ड्रामा हुआ है, इतना नॉटी आवर्स हुआ है इतना मतलब बहुत अलग चीज़ हुई है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस करके, तो आई एम हैप्पी। हाय, आई एम वर्षा। सो किंग करते हुए इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ अपने बारे में समझने मिला, एंड द बिगेस्ट थैंक यू टू अतरंगी टीम, की लाइट्स, और मुझे कास्ट करने के लिए शो में, बिकॉज इतना कुछ इवॉल्व हो गई हूँ। जो 27 डेज़ था जो शूट का, उसके बाद जो मैं आई हूँ, इट वॉज सो डिफरेंट। मैं बहुत ज़्यादा सीखी हूँ अपने लाइफ में, ऐसा लगता है लाइक 10x ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुकी हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस शो। सो हाय, दिस इज अक्षय जाकर, आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट, और यार इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक एक रिलेशन कैसे बिल्डअप होता है ये सीखने को मिला है, उसमें लड़ाइयाँ कैसे होती हैं ये सीखने को मिला है, और एक छत के नीचे आप इतने सारे लोग रह रहे होते हो ना, तो आपको एक दूसरे को जानने का ही मौका मिलता है, और आपके पार्टनर को भी पता लगता है कि वो कैसे मतलब आपसे बात करता है या किसी और से बात करता है, किसी और से कैसे इंटरेक्ट करता है, तो वो सब जानने को मिलेगा। बहुत बढ़िया शो था, मतलब
क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं अभी बोलने के लिए कुछ। आप सब लोगों को ये सवाल है, आप लोगों ने कितनी वेज वाली गाली दी है और नॉन वेज वाली गाली दी है, कितना यूज हुआ है गाली? वेज वाली गाली तो कोई होती नहीं है। गाली तो गाली होती है ना सर, वेज हो नॉन वेज हो, गुस्सा आया गाली दे दिया। पहले तो किसी को जाना नहीं था तो इतनी जल्दी निकली नहीं मुंह से, बट जब जाना लोगों के असली चेहरे दिखे तो बस मुंह बंद नहीं हुआ। सामने से अगर एक गाली आ रही थी तो हमारी तरफ से 3 निकल रही थी, बाकियों की तरफ से 2 निकलती, हमारी तरफ से 3 निकल रही थी। और मैं ऐसी हूँ कि मैं नॉर्मली किसी को गाली देती नहीं हूँ, मेरा मुंह ज़्यादा चलता नहीं, आई डोंट बिलीव इन यूजिंग गटर लैंग्वेज, मेरे हाथ चलते हैं, लेकिन इस बार मुझे कोई लायक नहीं लगा। बट फिर भी दी है आपको।